مچ واقعے میں جاں بحق افراد کی تدفین کچھ دیر بعد ہوگی۔ جنازہ اور تدفین ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں کی جائے گی۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مچ واقعے میں مظلوم افراد جن کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، ان کانکنوں کی میتیں ہزارہ ٹاؤن کی امام بارگاہ منتقل کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور کچھ ہی دیر میں تدفین ہزارہ قبرستان میں کر دی جائے گی۔ مچ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا مچ کول فیلڈ میں، جب بے دردی سے ان 11 کانکنوں کو قتل کر دیا گیا تھا، جن میں سے 7 افغانی باشندے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ آج ان کی تدفین ہزارہ قبرستان میں کر دی جائے گی اور ہزارہ ٹاؤن کی امام بارگاہ میں منتقل کی جا رہی ہیں۔ ان کی میتیں اس وقت شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں جو دھرنے جاری تھے وہ بھی اختتام پذیر ہو چکے ہیں، کیونکہ کل حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور شہداء کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے ہوا تھا، جس کے بعد ملک بھر سے یہ دھرنے ختم کر دیے گئے تھے اور یہ انتہائی مشکل وقت ہے جس میں پوری قوم دکھی ہے اور پوری قوم کی فضا سوگوار ہے، جو ان مظلوم مزدوروں کا قتل عام کیا گیا، انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا اور شہداء کی میتیں لیے شہداء کے لواحقین مغربی بائی پاس پر کئی دن بیٹھے رہے تاکہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ آئیں اور اس کے بعد ان کی تدفین کی جائے۔ اب کامیاب مذاکرات اور معاہدے کے بعد شہداء کے لواحقین اس بات پر رضامند ہو گئے کہ آج لواحقین ان کی تدفین کر دیں گے اور یہ تدفین کی جائے گی ہزارہ قبرستان میں۔ کانکنوں کی میتیں ہزارہ ٹاؤن کی امام بارگاہ منتقل کی جا رہی ہیں اور کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، جس کے بعد تدفین کا عمل شروع ہو جائے گا۔ شہداء کی تدفین ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں کی جائے گی اور شہداء کی میتیں ہزارہ ٹاؤن قبرستان پہنچا دی گئی ہیں اور لواحقین کی بڑی تعداد اس وقت جنازگاہ میں موجود ہے۔ وہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل شہداء کے لواحقین مغربی بائی پاس پر بیٹھے ہوئے تھے شہداء کی میتیں لے کر، تاکہ ان کے مطالبات جب مانے جائیں، ان سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد ان کی تدفین کریں گے۔ اب انہوں نے رضامندی جب ظاہر کی ایک کامیاب معاہدے کے بعد، جو حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور شہداء کے لواحقین کے درمیان 6 شقوں پر مشتمل یہ معاہدہ طے پایا تھا، اس کے بعد اب شہداء کے لواحقین اس بات پر رضامند ہوئے کہ ان کی تدفین آج کر دی جائے گی۔ ہزارہ قبرستان میں آج شہداء کی تدفین کر دی جائے گی۔ حکومت اور کوئٹہ میں مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد شہداء کی تدفین کے لیے ان کے لواحقین مان گئے تھے اور ملک بھر میں جو دھرنے دیے جا رہے تھے، جس میں MWM کی جانب سے دیے گئے دھرنے تھے، اب ان تمام دھرنوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور جو راستے بلاک تھے وہ راستے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ آرمی چیف کا دورہ بھی متوقع ہے کوئٹہ کا۔ اس سے قبل وہ بحرین گئے ہوئے تھے اور وہ بھی کوئٹہ جائیں گے اور وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے پہلے 10 بجے پہنچنا تھا، وہ اب 12 بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کوئٹہ پہنچیں گے اور وہاں پر جو تدفین ہے ہزارہ قبرستان میں وہ تدفین ہوگی۔ اس کے بعد شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کریں گے وزیر اعظم عمران خان۔ یقیناً وزیر اعظم کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا اس واقعے کے جاننے کے بعد، جس طرح سے پوری قوم دکھی ہے اس افسوسناک واقعے پر۔ آج شہداء کی تدفین کر دی جائے گی ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا مچ کول فیلڈ میں، جب دہشت گردوں نے بے رحمی سے ان 11 کانکنوں کو قتل کر دیا اور ان شہداء کی آج تدفین کی جا رہی ہے ہزارہ قبرستان میں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا مچ کول فیلڈ میں، جہاں پر ان محنت کش مزدوروں کی جانیں بے دردی سے لے لی گئیں، جن میں سے 7 افغانی بھی بتائے جا رہے ہیں اور آج ان کی تدفین کا عمل شروع ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں۔ ان کی میتیں، کانکنوں کی میتیں ہزارہ ٹاؤن کی امام بارگاہ منتقل کی گئیں اور ہزارہ قبرستان میں انہیں آج دفن کر دیا جائے گا، سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ شہداء کی تدفین ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں ہوگی اور شہداء کی میتیں ہزارہ ٹاؤن قبرستان پہنچا دی گئی ہیں۔ وہاں پر لواحقین کی بڑی تعداد موجود ہے، ملک کی فضا سوگوار ہے۔ اس افسوسناک واقعے پر تمام لوگوں کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ پاکستانی تھے، یہ ہمارے مسلمان بھائی تھے جن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ سانحہ مچ کے متاثرین کے وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ کل مذاکرات ہوئے مغربی بائی پاس پر اور اس کے بعد یہ جو لواحقین تھے یہ اس بات پر رضامند ہوئے کہ اپنے پیاروں کو سپرد خاک کر دیں گے۔ اس سے قبل پاکستان کے علماء کی جانب سے بھی اپیل کی جاتی رہی کہ شہداء کی تدفین کر دیجئے اور اس کے بعد ایران کے
के मरकज़ी शिया आलिम ग्रैंड आयतुल्लाह मकारिम की जानिब से भी उनको पैगाम दिया गया कि अपने प्यारों की तदफीन कर दें, और अब ये जो लवाहिकीन हैं अपने प्यारों की तदफीन के लिए आमादा हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद आतिफ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद आतिफ, बताइएगा, कुछ ही देर में तदफीन का अमल शुरू हो जाएगा? आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात जो है ये मामलात तय पा गए थे, और जो है जो हज़ारा बरादरी है उन्होंने और जो शोधा की लवाहिकीन हैं उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर लिया था, और इसके बाद जो है आज तदफीन का अमल किया जा रहा है। मैयतें जो है हज़ारा कब्रिस्तान पहुंचा दी गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो है नमाज जनाजा जो शोधा की है वो अदा की जाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इमामत करेंगे, और इसके बाद जो है वो मैयतों की तदफीन जो है वो मैयतों की तदफीन की जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो है उनके हमरा वफाकी वज़रा आज कोयटा भी आएंगे, और जो शोधा के लवाहिकीन हैं उनके साथ जो है वो इज़हार यकजहती करेंगे और उनके साथ जो है ताज़ियत भी करेंगे। सही, आतिफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जलाल नूरजई साहब, ये मुश्किल वक्त है, यकीनन इस वक्त मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है। क्या इंतज़ामात किए गए हैं तदफीन के, और जो 7 अफ़गानी बाशिंदे थे उनके हवाले से बताइएगा, उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, उनकी तदफीन का अमल किस तरह होगा? जी बिल्कुल, देखें ये तैयारियां तो सारी मुकम्मल है, और इसके एक बड़ी तादाद में हज़ारा टाउन और दूसरे इलाकों के लोग यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद है, और कुछ देर में नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी। और उस हवाले से पहले ही अफगान हुकूमत से खुद इनके 3 उनके वरसा ने और ये दरख्वास्त की थी कि उनके आबाई इलाके इनकी मैयतें पहुंचाने में मदद की जाए। तो उस हवाले से तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा कि अगर ये तदफीन अफगानिस्तान में कराएंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी ताउन होगा, और अफगान गवर्नमेंट भी इसके लिए तैयार है। लेकिन सरेदस इस वक्त सूरत-ए-हाल इस तरह है कि ये तदफीन हज़ारा कब्रिस्तान ही में हो रही है, और तमाम ये इस तरह कोई मैयतें वो उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाई जा रही है। तो फिर इसमें मजीद जो खुद ये शोहदा कमेटी है उन्होंने भी, और फिर वो मजलिस वहादत मुस्लिमीन, ये रात फैसला हुआ उनके साथ के तदफीन का फैसला इनका हुआ बाहमी, उससे उसके तहत बातचीत के तहत वज़ीर आला बलूचिस्तान गए थे, अली ज़ैदी गए थे, और सूबाई काबीना के अरकान थे, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली भी गए थे। तो ये एक मसला सरेदस बड़ा मसला था। तो आज ये एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ भी मौजूद है, तदफीन होगी, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की आमद भी मुतवक्के हैं। आज वो भी आएंगे, और वो भी इनसे इन हज़ारा कबाइल के रहनुमाओं से और इनसे लवाहिकीन से मुलाकात करेंगे, उनसे ताज़ियत करेंगे, और बाकी जो मुआहदा तो रात को हुआ है और जो मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए हैं, उस पर फिर अमल दरामद का एक सिलसिला शुरू होगा। जो मुतालबात जिनकी मंजूरी कल आमादगी ज़ाहिर की गई थी उस पर फिर अमल दरामद का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा जलाल नूरजई साहब, क्या इंतज़ामात किए गए हैं जनाज़गाह में? जो मैयतें हैं वो तो कब्रिस्तान पहुंचा दी गई हैं, हज़ारा कब्रिस्तान, दीगर क्या इंतज़ामात किए गए हैं? इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कि इसमें इस तरह है कि हज़ारा कब्रिस्तान चूँकि एक खुले इलाके में है, ये कोयटा के मगरबी पहाड़ के दामन में मगरबी बाईपास के साथ ही मुत्तसिल है ये कब्रिस्तान, और यहाँ पर इंतजामात तदफीन के सारे हुए हैं, और एक बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद है। इसमें खुसूसन हज़ारा कबाइल के अफराद इसमें शरीक हैं, और यहाँ से अलमदार रोड से और ये मरियाबाद के इलाके जहाँ पे भी हज़ारा आबादी मुकीम है, वहाँ से भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं नमाज जनाजा में शिरकत के लिए, और ख़ुद इनके मोतबरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं हज़ारा कबीले के, और यकीनन कुछ सियासी और समाजी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। तो की तैयारियाँ सारी मुकम्मल हैं, और कुछ देर बाद नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद उसी इमाम बारगाह वली नसर में ताज़ियत का सिलसिला फिर शुरू होगा। अच्छा जलाल नूरजई साहब, कुछ सूबाई वज़रा भी पहुंच रहे हैं, उनकी आमद का भी सिलसिला जारी है। कौन कौन से वज़रा पहुंच चुके हैं इस वक्त कोयटा? देखिए, जो मौजूद है वो ज़रूर इसमें शरीक हो रहे हैं,
और वो तमाम सूबाई वज़रा अरकान असम्बली वो इनसे इस मजलिस वहादत मुस्लिमीन से और फिर ये धरना की शुरका से वो इनसे मुसलसल राब्ते में थे। और ख़ुद अली ज़ैदी भी चंद दिन से यहाँ पर मौजूद थे और इस पूरे अमल को वो बड़े करीब से देख रहे थे और वो मुसलसल राब्ते में थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मिल के, ताकि ये जो एक डेडलॉक है इसको ख़त्म किया जाए और तदफीन का एक अमल शुरू हो। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो ज़रूर जो यहाँ पे कोयटा में वो है मौजूद हैं वो इसमें शरीक होंगे नमाज जनाजा में। तो अब ये तैयारियां मुकम्मल है, एक बड़ी तादाद में लोग शरीक है और कुछ देर बाद भी मजीद ये वाज़ेह होगा कि कौन कौन इस वक्त जनाजे में शरीक है। अच्छा जलाल साहब, ये बता दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए, जैसा कि मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि तदफीन होगी, उसके बाद वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ विज़िट करेंगे कोयटा का, क्या स्केड्यूल रहेगा, क्या इतलात हैं इस हवाले से, कब ये दौरा होगा? देखिए, वज़ीर आज़म की आमद की तैयारियां तो इस धरने को ख़त्म करने से एक दिन पहले भी मुकम्मल हो चुकी थी। उस वक्त जहाँ तक हमारी मालूमात है, सिक्योरिटी के इंतजाम और इसी तरह जो दीगर लवाजमात ज़िम्मे में उठाए जाते हैं वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। चूँकि वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि आप तस्लीम कर ले और बजा तौर पर उन्होंने ये दुरुस्त कहा था कि आप तस्लीम कर ले, वो आ जाएंगे और वज़ीर आज़म साहब आएंगे। उसकी आमद इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि वो यहाँ पे एक इजलास भी शेयर करे और जो मौजूद सूरत हाल है सूबे में अमन अमान और इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे, सूबाई हुकूमत, इन तमाम ने क्या इंतजाम किए और आइंदा क्या किए जाएंगे, तो इस पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएंगी। वज़ीर आज़म भी हिदायत देंगे। चूँकि ये सूरत हाल इस तरह है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में वक्तन फ़वक्तन हो रहे, सूबे के किसी न किसी इलाके में वाक़या रुनुमा हो ही जाता है। तो खुद सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर निशाने पर हैं और बाहर दूसरे सूबों से आने वाले मजदूर जो मुख्तलिफ तामीराती कंपनियों में काम कर रहे होते हैं वो निशाने पर हैं, अगवा कर लिए जाते हैं, उनको पहाड़ों में ले जाते हैं, वो कत्ल करके उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। तो ये एक बहुत ही लाजिम है। तो वज़ीर आज़म लाजिम एक तो शुहदा से इनके लवाकिन से वो ताज़ियत भी करेंगे और फिर इनके कबीले के हज़ारा कबीले के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे और फिर उसके बाद वो यकीनन सूबे की सूरत-ए-हाल पर उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी और ख़ुद वज़ीर आज़म भी कुछ हिदायत देंगे। अभी इस हवाले से चूँकि आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद भी कहा है कि वो भी आएंगे। उनकी आमद भी इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी सूरत-ए-हाल को उन्होंने भी देखना है। चूँकि यहाँ पे हमले तो ज़ाहिर है किसी एक तबके के, किसी एक फोर्स पे या किसी एक इदारे पे तो नहीं हो रही, यहाँ पे तो सभी निशाने पर है, चाहे खा हज़ारा कबीला हो या दूसरे सूबे से ताल्लुक रखने वाली मजदूर हो, फोर्सेस हो, फौज हो, पुलिस हो, लेवीज हो, सब पर हमले हुए हैं। और पिछले दिनों हरनाई में 7 FC एहलकार दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गए थे। इसी तरह फिर कोस्टल एरिया में यहाँ पर हमला हो के इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और इस तरह OGTCL के मुलाजमीन थे, वो तो बिल्कुल उनकी तलाशी कोयला बन गई थी। तो ये सारी सूरत-ए-हाल इसको देखना होगा और फिर हमसाया मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भी वज़ीर आज़म खुद आगाह है, आर्मी चीफ तो यकीनन इससे आगाह है। तो इस सिलसिले में मजीद भी स्टेप उठाए जाएंगे, इस तरह मजीद भी एक तदबीर की जाएगी। अब एक बात जो इसमें हो रही है कि कातिलों के हवाले से, हमलावर के हवाले से, देखिए ये एक चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये इस तरह कोई मुबहम सूरत-ए-हाल नहीं है, सब कुछ है। दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो आते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, हमला करके अपना हदफ पाते हैं, उसके बाद दोबारा वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो इसको ज़ाहिर है अब इन्होंने इस सूरत में भी देखना है कि हमसाया मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस सूरत-ए-हाल को भी इन्होंने मद्देनजर रखना है। जहाँ तक तो इत्तलाहात है, इससे पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब काबुल गए थे तो उन्होंने काबुल में जो दोहा पीस और अमन अमल है उस सूरत-ए-हाल पे भी बात की, पाकिस्तान के तआउन की बात की, लेकिन वज़ीर आज़म ने वहाँ पर बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल है। जलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त नमाज जनाजा की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। जैसे ही नमाज जनाजा शुरू होगी एक दफ़ा फिर आपको तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। सानेहा, मच के शहदा की तदफीन का अमल शुरू हो गया है।
सानेहा, मच के शहदा की नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है। इसे कुछ देर अदा कर दी गई है। अब से कुछ देर कबल शहदा की जो मैयतें हैं वो पहुंचाई गई थी हज़ारा कब्रिस्तान, और अब उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अब तदफीन का अमल शुरू होगा। अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 11 कानकनों को मार दिया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। उन शहदा की आज तदफीन की जा रही है और अब उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसके बाद तदफीन का अमल शुरू हो गया।